Hi friends, good morning to all of you. Today I'm going to speak with you how can you improve your English while watching English movies. आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि आप अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं मूवीज़ देखते हुए। हम सभी को मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, बट ज़्यादातर मूवीज़ हम किस में देखते हैं? अपनी मातृभाषा में देखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, वॉट एवर. बट इफ़ वी वॉन्ट टू इम्प्रूव इंग्लिश दैन समटाइम्स वी वॉच मूवीज़ इन इंग्लिश ऑल्सो. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूँगी कि वो कौन सी 10 ऐसी मूवीज हैं जो आपके इंग्लिश को बहुत ही ज़बरदस्त और एक एलीट क्लास, एक when you will speak, people will think, yeah, his English is so good, he's speaking very good words. Okay, how can you reach to that level? I'm going to speak with you in this topic. Okay, so be ready and listen very carefully. Keep a notebook and pen with you also to write the things and listen. Subscribe my channel and ring the bell icon by which you can get notifications time to time, because nowadays I'm giving very good content which will help you for your improvement of English. Okay, so my dear friend, the thing is that first of all, what we need to do, we need to keep some points in our mind. For example, first point is what? Whenever you watch movies, watch with the subtitles. Watch with the subtitles, because when you watch a movie with a subtitle, then what happens, my dear friends, you read, your mind starts reading also, and when your mind starts reading, then you understand the things in most better way. Another thing is that बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप सबटाइटल्स को देख रहे हो तो जल्दी से सबटाइटल्स निकल जाता है और आप पूरा पढ़ नहीं पाते हो. तो जब भी आप मूवीज़ को देखो, आप सबटाइटल्स को पढ़ो, और अगर वो आपकी आंखों के सामने से स्लिप कर गया तो आप उसको फिर से बैक जाओ और उसको फिर से आप उसको रीप्ले करो और आप उसको पढ़ो और आप सुनो. और उसमें बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपको नहीं मालूम है, जिसकी मीनिंग्स आपको नहीं. तो प्लीज़ कीप अ पेन एंड डायरी विद यू and write the word which you don't know. And my dear friends, immediately search the meaning, or if you are not in a mood to watch it immediately, but the thing is that you will not understand the movie. So if you will go ahead, then it has no meaning. So please take little effort. Okay, you download Hinko's app in your mobile and just you put that word, immediately you will get the meaning, my dear friends. You don't need to open the 1,000 pages dictionary. Okay, now technology has made it very easy. The second point is that, which is very much important, that is use earphone. When you are watching a movie, what you have to use? You have to use earphone by which you can put into your head. Okay, you just put into your ears both the earphone and listen it, because what will happen, you will listen very clearly. When it will be outer voice, then might be you will be not able to listen it clearly. और अगर आपको ईयरफोन से हेडेक होता है, कुछ लोगों को होता है, जैसे मुझे भी होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्पीकर को रखो और आप उसको स्पीकर पे प्ले करो. ओके, आप स्पीकर के साथ अगर प्ले करते हो तो साउंड ज़्यादा रहेगा, तो आपको क्लैरिटी आएगी. तो जस्ट यूज़ द ईयरफोन और जस्ट यू प्ले द मूवी, जस्ट यूज़ द ईयरफोन और द स्पीकर, and while listening you focus on the each and every word. All right, I understand you understand all these things. So the third important point is that pause and source the meaning of the word whatever you are getting. मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको मीनिंग को इमीडिएटली सर्च करना है. आपको ये नहीं सोचना कि मैं मूवी देख करके ढूंढूंगा, क्योंकि अगर आप मूवी देख करके ढूंढने की बात करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है मेरे फ्रेंड कि आप मीनिंग को समझ नहीं पाएंगे, पूरी मूवी को समझ नहीं पाएंगे. लेकिन अगर आप साथ में उसको करेंगे तो इट विल बी वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड यू. नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट, मेक योर ओन डिक्शनरी. मेक योर ओन डिक्शनरी मीन्स वॉट, जो ये वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, आप इसके लिए आप एक डिक्शनरी या आप एक डायरी बना रहे हो, डायरी में सारे वर्ड्स को लिख रहे हो, और जब आपको मीनिंग मिले तो उस मीनिंग को भी आप वहाँ पे लिख रहे हो, और उसके बाद में डे टू डे लाइफ में वैसे स्टेटमेंट्स को, वैसे सेंटेंसेस को आपको बोलने की प्रैक्टिस करना है. जब आप इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही you will speak a language of Hollywood. You will speak of, the source. It matters a lot with what sources you are learning. और अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हो तो आप सोर्स सही अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि उनकी फ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप जो सीखोगे भी वो वर्ल्ड क्लास सीख रहे हो, तो इट विल बी वेरी मच important for you and healthy for you. Okay, the next point is very good point, and that is रिवाइज एवरी संडे. हर एक संडे को आप क्या करो, जो आपकी डिक्शनरी आपके पास में है, आप उसके वर्ड्स को रिवाइज करो. ओके, हर एक संडे को आप उस वर्ड्स को रिवाइज करो, रिमेंबर करो,
और उस वर्ड मीनिंग को आप अपने दिमाग में इंस्टॉल करो, और डे टू डे लाइफ में जब आप जी रहे हो उस टाइम में उन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करो। और अगर आप पूरे सेंटेंस नहीं बना पाते हो तो जो जो वर्ड्स आपको आते हैं बस उन वर्ड्स को बोलो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, आई वॉन्ट, इट्स वेरी इजी, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, इट इज़ वेरी इजी फॉर एवरी वन, ओके। बट कैन आई कैच योर नेम अगर दिया हुआ है तो आप कैच योर नेम को आप बाय हार्ट करो, और जहाँ पे ज़रूरत है आप वहाँ पे बोलो कैन आई कैच योर नेम, या आप मतलब जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को कैच योर नेम, क्या आप कैच योर नेम की जो मीनिंग आप उसको अपने माइंड में इंस्टॉल करो लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट it's a very important point, okay, and that is now you have become master in vocabulary. अब ये तरीके से आपको क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपको मास्टर मिल जाएगी वोकैबलरी में। अभी आपको वोकैबलरी की मास्टर मीन्स जो भी वर्ड्स आपको मिले उसको आप यूज़ करो, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पॉसिबल है तो आप लिखो, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको उससे सेंटेंसेस बनाने में आसानी होगी। अब मैटर आता है ये 6 पॉइंट्स है जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको माइंड में रखने के लिए। अब आप मुझे बोलोगे ज्योति से आप उस मूवीज़ का नाम बताइए, 10 मूवीज जो आपने बोला कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अच्छे। दोस्तों ये बहुत अच्छी मूवीज, वर्ल्ड क्लास मूवीज़ हैं और बहुत ही मीनिंगफुल है। अगर आप इन मूवीज़ को देखते हो तो ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट पहले एप्लीकेशन के दिए, ये इन 6 पॉइंट्स को आपको इन मूवीज़ में अप्लाई करना है। एंड व्हाट इज़ दैट? फर्स्ट मूवी इज माय डियर फ्रेंड्स ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ अ वेरी गुड मूवी, इट्स बहुत ही अच्छी मूवी है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें बहुत खूबसूरत वर्ड्स मिलेंगे जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं बोलने के लिए। और डे टू डे लाइफ में मतलब आपको एक स्टैंडर्ड वर्ड मिलेंगे जो कि आपके इंग्लिश को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। अनदर मूवी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल माइंड। द टाइटल इट सेज कि दिस विल बी फ्लॉलेस एंड अमेजिंग। ब्यूटीफुल माइंड, आपका माइंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, इट्स अमेजिंग माय डियर फ्रेंड्स, ओके। एंड ये मूवी आपको ये बताएगी कि आपके माइंड के क्या क्या पावर्स हैं, किस लेवल पे ये सोच सकता है, किस लेवल पे वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आपको अपने लाइफ में क्या क्या सफलताएं मिल सकती हैं, और आप अपने माइंड का कितना इस्तेमाल कर सकते हो और कितना और कर सकते हो, किस लेवल पे आप पहुंच सकते हो। इट्स अ वेरी गुड मूवी, प्लीज़ वॉच इट, अ ब्यूटीफुल माइंड। द नेक्स्ट मूवी इज दैट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, माय फेवरेट मूवी। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी है। छोटा बच्चा है और उसके फादर हैं, उसमें फादर जो है वो स्टॉक मार्केट में वो अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए वो बहुत एफर्ट करता है, और ही इज़ अ सिंगल फादर बिकॉज हिज वाइफ हैज़ गॉन बिकॉज ऑफ सो रीजन्स। द चाइल्ड इज नॉट, द चाइल्ड इज़ विद द फादर व्हेन ही गोज़ टू सेल द मशीन्स, ही कैरीज हिज चाइल्ड ऑल्सो। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही पेन भी है, और वो हैप्पीनेस का जो सर्च उसके फादर को रहता है, और एक दिन वो बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट में एक नंबर 1 पर्सन बनता है, और उसने बहुत सारे शेयर्स खरीदे, बहुत उसको प्रॉफिट होता है। और ये रियल मूवी है, इट्स नॉट अ मूवी ओनली माय डियर फ्रेंड, इट्स अ रियल मूवी। वॉच इट, यू विल लव इट, रियली। आई नो इफ यू विल वॉच दिस मूवी यू विल give me comment, Jyoti, you have recommended a very nice movie, it's going to help me a lot. Okay, the next is that what Catch Me If You Can. The next movie, 4th number is what? Catch Me If You Can. आप मुझे पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो तो। It's also a very good movie, somewhere motivational, you can say that, very much inspiring, जबरदस्त है। You will learn a lot many things from this movie. What you need to do, I have to tell you, while you watching the movies, you have to listen very carefully, you have to write the new words. If you don't know the meaning, then you have to search it from the dictionary, then you have to go ahead. Might be it will take 2 hours, don't watch it 2 घंटे की मूवी है, अगर 2.5 घंटे, तो आप वन स्ट्रेच मत देखो, आप मूवीज़ को हाफ एन आवर देखो ना, हाफ एन आवर देखो, काम करो, फिर आप उसको बाद में देखो, या तो 40 मिनट देखो फिर बाद में देखो। क्योंकि आपका ये जो बाकी का भी मैं काम दे रही हूँ, माइट भी हाफ एन आवर इसमें भी लगे, बट आप एटलीस्ट अगर हाफ एन आवर भी एक दिन में देखते हो तो आप 4 दिन में उस मूवी को देख लोगे। और माय डियर फ्रेंड्स, आप उस मूवी को अगर 4 दिन में देखते हो, हाफ एन आवर उसके ऊपर काम करते हो, उसको के ऊपर जर्निंग करते हो, तो मूवी को आप देखोगे नहीं, उस मूवी में आप अपने आप को इन्वॉल्व पाओगे, यू विल बिकम अ कैरेक्टर ऑफ दैट मूवी एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। सो द नेक्स्ट इज व्हाट, द नेक्स्ट इज White Balloon. White Balloon is also a very nice movie, my dear friends. A small child is there, and it's a lovely movie, very interesting movie, very innocent movie. It's superb. Just you watch it. I don't know what to say how nice it is. I have watched this movie. And Everest, my dear friends, Everest is on 6th number. Everest is also a very nice movie, very inspiring. Okay,
इस मूवी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जाते हैं, बट बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो उस कठिनाइयों के दौर में कुछ लोग जो है वो बीच से ही वापस आ जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो बोलते हैं नहीं, जब तक मैं फ़तेह वहाँ पे हासिल करूँगा नहीं, मैं नीचे नहीं आऊँगा। एंड ही इज़ गोइंग देयर एंड अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स हैज़ कम इनटू हिज लाइफ. So when you will watch the movie, if I'll tell you everything, then you will lose the interest. Okay, just you go and watch, क्योंकि मूवी का इंटरेस्ट उसमें ही होता है जब हम उसको देखते हैं. Yes. Now another movie is that on 7 number, Castaway. Castaway is also very nice movie. It will help you a lot. Okay, so watch this movie. You will learn many things into this movie. And my dear friends, 8 number, Little Boy, my favorite one. I love this movie. The boy, the character of the boy is superb. His, you know, a mustard can move the mountain. A mustard can move the mountain. This dialogue in this movie, I have no word to say how nice this is. ये मूवी इसके बारे में है कि a little boy जो है, his father is, you know, his father has gone for war and there is a news he is no more. But the child, everybody is believing that the father is no more. But the child, a small child, he is the youngest child of his father. He loves his father very much and he has so much faith. He is saying no, my father will be back. And he has learned some scriptures. He is studying Bible, and in Bible there is that a mustard can move the mountain. So he's practicing all those things, whatever, you know, people only do listen the preachings, but the child has no logical mind, my dear friends. Child only thinks whatever you say, yes way. तो वो जो भी उसको पढ़ता है उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा है और उसके भरोसे से फाइनली उसके फादर आते हैं. बिकॉज it's amazing. Please, you watch it, then you will understand. Anyhow, his father was saved and they got the news, and the child, and you know, the child met with his father. It's very lovely movie, very interesting, very innocent. The next movie is that Interstellar is also a very inventive movie, very nice movie. And it's a, I don't have what to say. Please, just you watch it. And the 10th number is that A Dog Way Home. A Dog Way Home. एक डॉग है जो कि अपने मालिक से बिछड़ जाता है. वो बहुत हार्डशिप्स झेलता है, उसका मालिक उसे बहुत प्यार करता है. एनीवे डॉग बाद में वापस भी आता है, फिर वो लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं. The movie is very innocent, very interesting if you love pets and such as stories. It's hilarious. Because I love pets always, so I liked it so much. My dear friends, I'll give you 3 bonus points. 10 points मैंने ले लिया, 10 movies मैंने आपको दे दिया. Gravity, A Beautiful Mind, Pursuit of Happiness, Catch Me If You Can, White Balloon, Everest, Castaway, Little Boy, Interstellar. And now 3 movies, A Dog Way Home. The 10th number was that. Now I'll give you the bonus point. You'll say, Jyoti, what is in bonus point? In bonus point, dear friends, I'll give you 3 more movies. Okay, that is first The Breakthrough. नाम से ही बोल रहा है ब्रेक थ्रू. हर किसी को अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए. वॉच दिस मूवी, यू विल गेट रियली ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ. द नेक्स्ट मूवी इज दैट The Founder is also amazing, superb, lovely. Okay, I don't want to increase this video for more time, otherwise you people will not watch. Okay, so that's why I'm going fast now. And the last, The Social Network. So my dear friend, these are the movies. You watch it, you learn it, you follow the principles which I gave you. Okay, and one more request to all of you: if you think I have given you good points, you are going to change your life, you are going to mend your life, you are going to learn the language which you love, in which you want to proficiency, please give me your comment. And what topic you want on to which I should make the videos, please give that point also. I will make video for you, because I have promised to myself I will use 100% of my potential, and I will teach my people who follow me, who like me, who love me, how can they use their 100% potential in their life. For that I'm working, my dear friends. Give your love, share your comment with me. Thank you so much. Love you all. Bye bye. Take care. Love you all. Right, so we will meet in next lecture very soon.